friends, thank you so much for supporting me. As we know, we have completed two topics till date. Number one is classification of material. Number second of defect and discontinuity. So this week, before starting the technical topic, I just want to share my second values which I used to follow in my practical life. And the second value is respect every individual. So respect is very unique word in our industry. And my point of view that we have to respect every individual. Either he may be our senior, he may be our junior, he may be our colleague, he may be our family, he may be our client, he may be our shop floor employee. So respect is very important and essential part in our industry. In our industry, or you can say in our family also. So when any person, any individual feel respect, then he can work far better than that. He may work far better in his mind, far better in his hand. So we have to start providing respect to each and every individual. And trust me guys, you can see the difference. You can see the difference in your work premise, in your home. So make sure, in my theory, technical side is very important, but it is up to certain mark. But soft skill and other part is having a vital role in our industry. So we need to follow our values. Like last week I have discussed about everyday learning. And this week I discuss about respect each and every individual. Okay, so guys, now we need to move for our technical topic. So this week technical topic is classification of discontinuity. So we know discontinuity is very important, because if anybody asks the question why we are doing NDT, non-destructive examination, NDE and destructive testing, the answer behind is to identify the defect or discontinuity in the component. So in today's topic, I just want to brief you in which area and in which process discontinuity initiated or developed. So my first point is, we classify discontinuity in three criteria. Number one, inherent or primary type. Number second, secondary and processing type. And number third, that is the service discontinuity. So I just want to start with one by one. So in inherent or primary type discontinuity, basically this type of discontinuity developed when material formed. So all of you knows casting. Casting is a kind of material, casting is a kind of process where a liquidator poured in a mold and we found desired shape casting product. So जब लिक्विड मेटल पोर होता है और उससे एक सॉलिड मटेरियल बनता है, तो ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट, लॉट्स ऑफ discontinuity and indication develop. So in this you can see the casting is having so many kind of defect or discontinuity. That may be porosity, that may be shrinkage, that may be cold shut, that may be inclusion, hot tear, cold shift, dross, etc. Lots of discontinuity are there. So why today's topic is very important, because you people should know in which classification discontinuity and defect originate. So सबसे पहला है inherent और primary, जिसमें आप कास्टिंग को पाते हैं. अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट की. सेकेंडरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट वो होती हैं जो कास्टिंग बनने के बाद उसमें डिफरेंट प्रोसेस से हम कोई कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं. आपको पता होगा, सबसे पहला मैंने फोर्जिंग दिखाया है. फोर्जिंग में एक इनगट पे कंप्रेसिव फोर्स लगने के बाद एक डिजायर्ड शेप में हम एक कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं. और जब हम कंप्रेसिव फोर्स, डिजायर्ड फोर्स लगाते हैं और डिजायर्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोसेस को फोर्जिंग कहते हैं. और इसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, जैसे लैप्स है, बर्स्ट है, फ्लैक्स है, इंक्लूजन है.
इसके डिटेल को मैं आपको बाद में कवर करूंगा, बट आज के टॉपिक के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो डिसकंटिन्यूटी है डिफरेंट प्रोसेस में वो किस नाम से जानी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको कवर किया कि फोर्जिंग में डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, लाइक लैप्स, बर्स्ट, फ्लैग, इंक्लूजन एटसेट्रा। इसी तरीके से वेल्डिंग एक सेकेंडरी प्रोसेस है। वेल्डिंग प्रोसेस में यू कैन फाइंड पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अंडरकट, स्पेटर एटसेट्रा। लॉट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर देयर एंड एज अ इंजीनियर वी शुड नो डिसकंटिन्यूटी बाय नेम, बिकॉज मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों की इंडस्ट्री में। हम बोल क्या रहे हैं और हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो दोस्तों तीसरा जो प्रोसेस है वो है मशीनिंग। मशीनिंग में जनरली आप लोगों ने चैटरिंग फाइंड आउट किया होगा। जब टूल बर्थ होता है, टूल ब्लंड होता है, तो चैटरिंग ऑब्जर्व होता है, टूल मार्क ऑब्जर्व होते हैं और बहुत टाइप के डिफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। तो दोस्तों चौथा है मेरा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में आपको पता है कि जो मटेरियल को हीट करने के बाद कूलिंग, कुछ एयर में कूल होता है जिसको नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, वाटर में कूल होता है, क्विंच कहते हैं। तो जब क्विंच करते हैं हम तो क्विंच क्रैक और सिग्मा फॉर्मेशन क्रैक डेवलप होता है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हीट ट्रीटमेंट में ऑब्जर्व होती है। मैं बात करता हूं ग्राइंडिंग की। तो ग्राइंडिंग दोस्तों, जब ग्राइंडिंग होता है तो उसमें ग्राइंडिंग क्रैक डेवलप हो सकते हैं। ग्राइंडिंग क्रैक डेवलप होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। कुछ ऐसे मटेरियल है हमारे, जैसे निकल बेस एलॉय मटेरियल है, ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, जिसमें आप एक्सेसिव हीट करेंगे तो मटेरियल क्रैक करेगा। फिर मैं बात करूंगा रोलिंग की। तो रोलिंग में आपको पता है कि जो प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो इनगट को रोल करने से होता है, और जब रोलिंग होता है तो डिफेक्ट बनता है लेमिनेशन। तो दोस्तों एक बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो डिसकंटिन्यूटी मेरे इनहेरेंट और प्राइमरी टाइप में है, कास्टिंग में है, प्रोसेसिंग में आने के बाद वो डिसकंटिन्यूटी वैसी ही रहेगी, बट प्रोसेस की वजह से उसका साइज चेंज होगा और उसका नाम चेंज होगा। सॉरी, जैसे मैं बात करता हूं कास्टिंग में अगर श्रिंकेज है तो फोर्जिंग में इट मे बी बर्स्ट, कि अंदर से कुछ प्रेशर लगा, वो बर्स्ट किया, तो नाम चेंज होंगे। ये डिसकंटिन्यूटी यहां पर आने के बाद हर जगह चेंज होती जाएगी। अगर मैं बात करता हूं रोलिंग की, लेमिनेशन कैसे फॉर्म किया? अगर इंगट में कोई इंक्लूजन है, इंक्लूजन को खींचा जा रहा है, तो जो इंक्लूजन है वो खींचने के बाद लेमिनेशन फॉर्म कर देगा। तो आपको वो मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो है सर्विस डिसकंटिन्यूटी। आप सबको पता है कंपोनेंट बनने के बाद क्लाइंट को डिलीवर होता है, क्लाइंट अपने यहां पर उसको प्रोजेक्ट में लगाता है, और जब वो प्रोजेक्ट में लगा लेता है, लगाने के बाद जब वो प्रोसेस में आ जाता है तो उस समय जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम सर्विस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे कि कोरोजन मेनली लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। आपका मटेरियल, आपने कोई वॉल बनाया है, कोई पंप बनाया है, कोई कास्टिंग है, वो सर्विस में लग गई है। लगने के बाद उसके अंदर से कोई मटेरियल फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से उसमें कोरोजन लगा। कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, क्या करेगा? उसकी मटेरियल की थिकनेस को कम करेगा, और जब मटेरियल की थिकनेस एक सर्टेन लिमिट के बाद कम हो जाती है तो उसमें चांसेस है फेल्योर। इसी तरीके से दोस्तों मैं बात करता हूं फटीग की। फटीग आप लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरमीडिएट से ही पढ़ना शुरू किया होगा फटीग को। फटीग कंटिन्यूअस लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। इट मींस क्रैक इनिशिएटेड बाय फटीग साइक्लिंग। फटीग साइक्लिंग, एक बार लोडिंग होगा, एक बार अनलोडिंग होगा। दोस्तों इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन का जो पटरी होता है, उसके ऊपर से ट्रेन जब गुजरती है तो क्या होता है? लोड होता है। जब वो निकल जाती है तो क्या होता है? अनलोड होता है। तो ये एक सर्टेन मोमेंट तक लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो क्या डेवलप करता है? फटीग क्रैक डेवलप करता है। दोस्तों मैं बात करता हूं वियर का। वियर बेसिकली लॉस ऑफ मटेरियल है जो सरफेस से निकलता है, और ये किसी मैकेनिकल मेथड के थ्रू हो सकता है। अगर वियर होगा
तो उस जगह पे भी थिकनेस कम हो जाएगा। अगर पेंट है, पेंट निकल गया बीयरिंग में, तो हो सकता है वहां पर क्रैक कोरोजन डेवलप हो जाए। तो वियर इज ऑल्सो सर्विस डिसकंटिन्यूटी। लास्ट, क्रीप। क्रीप में जैसे फटीग में मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस लोडिंग और अनलोडिंग होता है, क्रीप में परमानेंट लोड लगता है, और जब परमानेंट लोड लगता है तो उसकी वजह से क्रैक इनिशिएट हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं इन डिसकंटिन्यूटी को आपको पिक्चर के फॉर्म पे दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के फोटोज। सो सबसे पहले हमने जैसा आपको बताया था, हम स्टार्ट करते हैं इनहेरेंट और प्राइमरी डिसकंटिन्यूटी। कास्टिंग में आप देख सकते हैं पोरोसिटी, श्रिंकेज, कोल्ड शिफ्ट, इंक्लूजन। क्रैक्स, हॉट ईयर का फोटो, it takes time, but hot tear will occur whenever higher thickness and lower thickness is there. So at the solidification of the higher thickness and lower thickness, you can see hot tear. Photo is not shown in this. Okay, yeah, it is there. Now you can see the secondary and processing kind of discontinuity. In forging, you can see block forging and different type of cracks. You can see die cavity and laps you can see there. So all are the different type of forging discontinuity. And now you can see the welding one. So you can see the crack, porosity, spatter, overlap, slag inclusion, incomplete penetration, incomplete fusion, undercuts. You can see the machining discontinuity as we discussed. In the first picture you can see this is the actually chattering. In second picture you can see the tool mark. This is the heat treatment quench crack you can see in this picture. This is the grinding defect over excessive heat. Due to excessive heat at the time of grinding, this crack happens in nickel base alloy, duplex alloy and austenitic stainless steel. Friends, you can see the photograph of corrosion. So corrosion happens at site. This is the service discontinuity. This is the fatigue crack. You know, loading, unloading. Due to that, fatigue crack initiated under service discontinuity. Friend, this is the wear, material removal by mechanical mean from the surface. So this is the photo you can see for the wear. And friends, this is the photo for creep. Creep is a permanent deformation, so you can see this photo. So दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैंने एक विजन देखा है। मेरा विजन इस सोसाइटी में टेक्निकल फील्ड में लोगों को कुछ देना है, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो दोस्तों उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं, जो किसी लोगों के लिए बहुत ईजी होता है और कुछ लोगों के लिए ईजी नहीं होता है। दोस्तों एक और पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूं, वो है वैल्यूज को। हम अपनी इंडस्ट्री में, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हाईली टेक्निकल लोगों को देखा है जो टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग है, बट हमें ऐसा लगता है कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट वैल्यूज में भी है। तो मैं वैल्यूज को भी शेयर करता रहूंगा, टेक्निकल में डिस्कस करता रहूंगा, बहुत कुछ आपसे सीखूंगा, बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा, और ये जर्नी आगे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।